Hello friends, I Neha welcome you all back in my YouTube channel Aim High Tutorial. Friends, today we are going to read the very first chapter from the English NCERT Standard 11th book Hornbill, and the name of the chapter is The Portrait of a Lady. But before we start the chapter, let's discuss a few points about the author of this story. The author of this story is Khushwant Singh. He was born on February 2, 1915 in Hadali, Punjab province. In those days, during 1915, there was British rule in all over India. That's why this place was situated in Punjab province, and Punjab was known as a province. But these days, Hadali is situated in the part of Pakistan. He died on 20th March 2014 in New Delhi, India. As a professional, he was a lawyer, journalist, diplomat, politician, and a well-known writer. Friends, now we will start the story. The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ जैसे कि बाकी बूढ़ी औरतें होती हैं, वैसे ही वो भी बूढ़ी थी. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. पिछले 20 सालों से जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो हमेशा से ऐसी ही बूढ़ी रही हैं. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग ऐसा कहते हैं कि वो पहले काफ़ी खूबसूरत थी, जवान थी और उनके एक पति भी थे. But that was hard to believe. लेकिन ये विश्वास करना काफ़ी मुश्किल था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी की तस्वीर हमारे ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी. He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने सर पे एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी और काफ़ी ढीले ढाले कपड़े. His long, white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी दाढ़ी जो थी वो काफ़ी लंबी थी और उनके चेस्ट के अच्छे खासे हिस्से को वो कवर कर लेती थी और लगभग वो 100 साल के होंगे ऐसा देख के लगता था. He did not look the sort of person who would have a wife or children. उन्हें देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पत्नी और बच्चे रहे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देख के लगता था कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ ज़रूर रहे होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और मेरी दादी माँ के लिए ये सुनना कि वो यंग और प्रिटी रही होंगी, ये तो बहुत ही विरोधाभासी प्रतीत होता था. She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर हमें ये बताया करती थी कि वो अपने बचपन में कौन से खेल खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जब वो हमें ये बातें बताती थी तो हमें उन पर विश्वास ही नहीं होता था और हम ऐसा मानते थे कि शायद ये उन कहानियों की जैसी ही हैं जो हमें सुनाया करती हैं. She had always been short and fat and slightly bent. वो हल्की सी उनकी हाइट जो थी वो हल्की सी कम थी, थोड़ी मोटी भी थी और झुकी हुई थी. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पे जहाँ तहाँ झुर्रियों की रेखाएं साफ दिखाई देती थी. No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, वो ऐसी ही हैं जैसा कि हम उन्हें जानते आए हैं. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो इतनी बूढ़ी थी, हमें ऐसा लगता था कि वो इतनी बूढ़ी थी कि पिछले 20 सालों में वो बड़ी या बूढ़ी हुई ही नहीं है. वो तो हमेशा से ऐसी ही थी. She could never have been pretty, but she was always beautiful. हाँ, वो कभी प्रिटी तो नहीं रही होंगी, लेकिन वो खूबसूरत हमेशा से थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of her rosary. पूरे घर में वो पूरे दिन अपनी एक हाथ को अपनी कमर से टिकाए हुए वो घूमा करती थी और सबको दूसरे कार्य बताया करती थी ताकि घर के सारे कार्य ठीक तरीके से हो सके.
Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनका जो चेहरा था उनके उनका जो चेहरा था वो काफ़ी अलग लगता था। इसके बाद वो हमेशा कोई ना कोई प्रेयर, कोई प्रार्थना अपने मन ही मन दोहराया करती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो ठंड के दिनों की तरह काफ़ी शांत, ऐसे लगता था जैसे कि पहाड़ों की ठंड के समान वो शांत हों, और उन्हें देख के लगता था कि उनकी वजह से उनके आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी शांत रहा है और उनके अंदर हमेशा शांति और संतोष की भावना रही हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी व्हेन हर my parents left her with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता हम दोनों को छोड़ के शहर चले गए थे और तब से हम दोनों साथ ही रहते आए हैं। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो रोज़ सुबह मुझे उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। She had her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो हमेशा जब प्रेयर करती थी तो मुझे तैयार कराते हुए भी उस प्रेयर को दोहराती रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद मैं इस प्रेयर को धीरे धीरे याद कर लूँगा। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं ये प्रेयर सुनता तो था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन कभी भी मैंने उसे याद करने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch me wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. इसके बाद जब वो मुझे तैयार करती तो मुझे लकड़ी की स्लेट देती, चौक देती, एक छोटा सा इंक पॉट देती जो कि मिट्टी का बना हुआ होता था, और इसके बाद एक लाल पेन। इन सभी चीज़ों को वो बांध के मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. इसके बाद हम दोनों ब्रेकफास्ट करते और ब्रेकफास्ट करने के बाद जिस पे बहुत सारा चपातियों पे बहुत सारा बटर लगा होता था, शुगर लगी हुई होती थी, हम दोनों स्कूल के लिए निकल जाते थे। वो अपने साथ बहुत सारी स्टेल चपातीज, बासी बची हुई रोटियां जो थी वो गांव के कुत्तों के लिए लेके जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी मुझे पहुँचाने, क्योंकि उसके बगल में ही मंदिर था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वहाँ के जो पुजारी थे वो हमें अक्षर सिखाया करते थे, अक्षर ज्ञान देते थे और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब सारे बच्चे वरांदा में बैठ करके प्रेयर को गाया करते थे, उसे दोहराया करते थे, एक धुन में गाया करते थे, तब मेरी दादी माँ अंदर बैठ करके पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब हम दोनों ही पढ़ाई कर लेते थे तब हम दोनों वापस चले आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. जब हम वापस लौटे थे तो हमें गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे के पास मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वे सभी कुत्ते हम दोनों को घर छोड़ने आते थे और रास्ते में वे एक दूसरे से लड़ते हुए आते थे उन रोटियों के लिए जो हम उन्हें देते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में पूरी तरह से सेटल हो गए तब उन्होंने हमें बुलाया। That was a turning point in our friendship.
और यही हमारे दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट बन के आया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। हम दोनों रहते तो एक ही कमरे में थे, लेकिन मेरी दादी माँ मुझे कभी विद्यालय छोड़ने नहीं जाया करती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं एक अंग्रेज़ी स्कूल में मोटर बस में बैठ के जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और जब मैं रास्ते में जाता था तो गली में रोड पे कुत्ते तो नहीं होते थे, लेकिन मेरी दादी माँ जो थी वो हमारे शहर के घर में चिड़ियों को, गौरैया जो चिड़िया हुआ करती थी, उन्हें दाने दिया करती थी खाने के लिए। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। कई साल बीत गए जब ये सब होता रहा और हमने एक दूसरे को ढंग से देखा भी नहीं। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ दिनों तक तो वो मुझे रोज़ सुबह जगाया करती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि मेरे शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उन्हें इंग्लिश के, अंग्रेज़ी के कुछ शब्द और पाश्चात्य के विज्ञान की शिक्षा के बारे में बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। मैं उन्हें ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत और इसके बाद दुनिया गोल है, ये सारी बातें बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। इन सभी चीज़ों से वो नाखुश होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो मुझे मेरे लेसन्स में, मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो इस बात से नाखुश थी क्योंकि एक तो वो मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी, दूसरी बात ये थी कि ये इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि यहाँ पे ईश्वर और उससे संबंधित जो उपनिषद पुराण है, जो धार्मिक बातें हैं, वो नहीं पढ़ाई जाती हैं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन, संगीत के लेसन्स दिए जाएंगे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस। It was the monopoly of harriets and beggars and not meant for gentlefolk. उनके लिए ये म्यूज़िक जो था, ये सभ्य लोगों के लिए था ही नहीं, ये तो सिर्फ भिखारियों के लिए था और ऐसे लोगों के लिए था जो कुछ करते नहीं थे, बल्कि वो दूसरों पे आश्रित होते थे। She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी ही ये बता रही थी कि वो उनकी इसमें सहमति नहीं है। She rarely talked to me after that. और उस दिन के बाद वो बहुत मुश्किल से कभी कभी ही मुझसे बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने गया तो मुझे अपना कमरा मिला। The common link of friendship was snapped. और जो सामान्य तौर पे जो दोस्ती, मित्रता की जो धागा होता है वो बिल्कुल अलग हो गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी दादी माँ ने इस बात को पूरा स्वीकार भी कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. वो बहुत मुश्किल से ही कभी भी अपने स्पिनिंग व्हील को, अपने चरखे को छोड़ती थी, बल्कि वो सुबह सूर्योदय से लेकर के सूरज के डूबने तक उसे घुमाया करती थी और कुछ न कुछ प्रार्थना किया करती थी, कोई ना कोई प्रेयर गाया करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर के समय में ही वो कुछ देर के लिए अवकाश लेती थी और चिड़ियों को खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब दोपहर के समय में जब वो बरामदे में बैठ करके
रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो सैकड़ों की संख्या में चिड़िया आकर के उनके आसपास चहचहाने लगती थी। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ तो उनके पैरों के पास भी आके बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पे भी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ चिड़िया तो उनके सिर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्होंने उन्हें भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये पूरे दिन का सबसे खुशनुमा समय उनके लिए हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने यह तय किया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाऊंगा, तो मुझे इस बात की निश्चितता थी कि मेरी दादी माँ इस बात से खुश नहीं होंगी। I would be all away for 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए जा रहा था। And at her age, one could never tell. और उनकी उम्र में ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई मान भी नहीं सकता था। But my grandmother could, and she was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk to show any emotion. मेरी दादी माँ जो थी, मेरे निकलते समय वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, क्योंकि वो एक भावुक स्त्री थी। फिर भी उन्होंने एक भी बार मुझसे बात नहीं की, क्योंकि वो मुझे अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को नहीं जताना चाहती थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके होठ जो थे वो बार बार प्रेयर को ही दोहरा रहे थे, और उनके मन में भी प्रेयर ही चल रहा था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो माला थी उसके बीट्स को ही हिलाते हुए उनके फिंगर्स मूव कर रहे थे। Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उन्होंने धीरे से बिल्कुल शांत होते हुए मेरे माथे को चूमा, और फिर मैंने उस चुंबन को महसूस किया, छुआ, और मुझे लगा कि शायद ये हम दोनों के बीच का अंतिम फिजिकल कांटेक्ट है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और जब 5 सालों के बाद मैं घर लौटा तो मैं उनसे स्टेशन पे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था मानो जैसे मैं उन्हें छोड़ के गया था वो उसी उम्र में अभी भी हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. वो अभी भी कोई भी एक शब्द भी बोल नहीं रही थी, बल्कि वो अभी भी अपने प्रेयर में ही लगे हुई थी, और मुझे ये तब महसूस हुआ जब उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। Everyone, the first day, even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. यहाँ तक कि जब मैं आया और वो पहला दिन था मेरे वापस आने का, मैंने देखा कि आज भी वो अपनी उन गौरैया चिड़ियों को खाना खिलाने में ही व्यस्त थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें कुछ बदलाव दिखा। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की औरतों को अपने पास इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुराना ड्रम लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डालापिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, उन्होंने उस पुराने से ड्रम पे बजाना शुरू किया और जैसे वीर वापस आते हैं उनके गीतों को गाना शुरू किया। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें रोकना पड़ा ताकि ये कुछ ज़्यादा ना हो जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वही पहला ऐसा क्षण था, समय था जब मैंने देखा कि प्रार्थना वो नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, काफ़ी हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि ये बुखार जल्दी ही उन्हें छोड़ देगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर,
उन्होंने हमसे कहा कि उनका अंत नज़दीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने कहा कि अब उनके जीवन का क्योंकि ये अंतिम क्षण है, वो भगवान की प्रार्थना करना चाहती हैं, ना कि अपना समय हमसे बातें करने में व्यर्थ गंवाना चाहती हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, अनसुना अनदेखा कर दिया। शी लेप ऑफ पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो आराम से बिस्तर में पड़ी रहीं, बिल्कुल शांति से पड़ी रहीं, अपने बीट्स को, अपने माला को घुमाती रहीं और प्रार्थना करती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। जब इससे पहले कि हम ये सोच भी पाते, उनके हाथों से उनकी माला जो थी वो गिर चुकी थी और उनके होठ जो थे वो चुप हो गए थे। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। उनके चेहरे पे बिल्कुल शांति नज़र आ रही थी और उन्हें देख के हम समझ गए कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। जैसा कि प्रथा है, हमने उन्हें बिस्तर से उतारा, ज़मीन पे लिटाया और उन्हें लाल रंग के कपड़े से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटे दुखी रहने के बाद, कुछ घंटे उनकी शोक में रहने के बाद हम लोगों ने उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि हम उनके फ्यूनरल की अरेंजमेंट्स तैयारी कर सकें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। इसके बाद शाम के वक्त हम उनके कमरे में गए उन्हें लेने, ताकि हम उनका क्रिमेशन, उनका अंतिम संस्कार कर सकें। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। शाम का समय था, सूरज जो था वो डूब रहा था और उनका पूरा कमरा जो था वो सुनहरे रंग के प्रकाश से भर गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम लोग आंगन में ही रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. उनके कमरे में जब हम जा रहे थे तो हमने देखा कि पूरे बरामदा में और उनके कमरे में, जहाँ कि उनका पूरा शरीर हमने लाल कपड़े में ढक के रखा था, वहाँ हज़ारों की संख्या में गौरैया चिड़िया ज़मीन पर बैठी हुई हैं। देयर वॉज नो चर्पिंग, वे चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड देम ब्रेड फॉर देम। हमें उनके लिए बुरा लग रहा था। मेरी माँ ने उनके लिए कुछ रोटियाँ मेरी माँ लेकर के आईं। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रेव इट टू देम, और इसके बाद उन्होंने उन रोटियों के टुकड़ों को उनके सामने, चिड़ियों के सामने डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने रोटी के टुकड़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लिव अवे क्वाइटली, जब हम अपनी दादी माँ की लाश को लेकर के उठाने लगे और जाने लगे, वे सारी चिड़िया बिल्कुल शांति से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रीड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर था, जो सफाई करने वाला व्यक्ति था, उसने उन सारे रोटी के टुकड़ों को उठा के डस्टबिन में डाल दिया। फ्रेंड्स, दिस वॉज द स्टोरी अबाउट अ बॉय फ्रॉम हिज चाइल्डहुड अप टू ही वॉज अ यंग मैन, and this story was completely about his dadima, his grandmother, how she was and how she led her life until her death. I hope that you enjoyed this story and explanation. If you have any doubt, let me know it in the comment box. Thank you for watching.